یہ ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ بھارت اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس قرارداد پر ووٹنگ سے غیر حاضر رہا جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی امدادی کوششوں کو پابندیوں سے باہر رکھنے کو کہا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ حساسیت اور ہمدردی انسانی حقوق کو فروغ دینے کی کنجی ہے۔ جموں کشمیر کو آیوشمان بھارت پروگرام کے تحت 2 زمروں میں پہلے اور دوسرا ایوارڈ سے نوازا گیا اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں پولیس کے شہداء کے بچوں کے لیے ڈیجیٹل سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا کیا افتتاح۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC میں اس قرارداد پر ووٹنگ سے غیر حاضر رہا جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی امدادی کوششوں کو پابندیوں سے باہر رکھنے کو کہا گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ ممنوعہ دہشت گرد گروپ پابندیوں سے بچنے کے لیے انسانی ہمدردیوں کی تنظیموں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں فنڈز میں اضافہ کرنے اور جنگجوؤں کو بھرتی کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کا استعمال کرتی ہیں۔ آج عالمی سطح پر انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال آج ہی یعنی 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں پروگراموں اور تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 2022 کے حقوق انسانی کے دن کا موضوع ہے سب کے لیے وقار، آزادی اور انصاف۔ ہیومن رائٹس دن کی مناسبت سے آج منعقد ہو رہے پروگراموں کے دوران ہر فرد کی خاطر معیاری اور بہتر سہولیات، خوراک کی فراہمی، پینے کے محفوظ پانی اور صفائی ستھرائی کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ حساسیت اور ہمدردی انسانی حقوق کو فروغ دینے کی کنجی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں انسانی حقوق کے دن کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ بنیادی عظمت اور عزت جیسی چیز سے بھی نسل، مذہب، زبان یا مرد اور عورت کی بنیاد پر کیوں کسی کو محروم رکھا جا سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اگر ہم خود کو ان افراد کی جگہ پر محسوس کریں جنہیں ایک انسان سے بھی کم سمجھا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم اس سلسلے میں ضروری قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر کو آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ ID جنریشن کے لیے پہلے زمرے میں پہلا ایوارڈ اور یونیورسل ہیلتھ کوریج کے دن کی تقریبات کے دوران ٹیلی کنسلٹیشن کے لیے دوسرے زمرے کا انعام ملا ہے۔ یہ دن 10 اور 11 دسمبر کو اتر پردیش وارانسی میں انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی مالی دقت کے بغیر لوگوں کو نزدیک میں معیاری طبی نگہداشت کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب پر UP کی گورنر شریمتی آنندی بین پٹیل نے ورچوئل موڈ میں شرکت کی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ NHM کے اسٹیٹ نوڈل آفیسر ڈاکٹر محمد شفیع کوکا نے تقریب میں حصہ لیا اور مرکزی وزیر صحت سے ایوارڈ حاصل کیے جنہوں نے جموں کشمیر میں طبی نگہداشت کے ڈیلیوری سسٹم میں سنگ میل حاصل کرنے کے لیے ذاتی طور مبارکباد دی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ کی 572 دکانوں میں 535 ریلوے اسٹیشن شامل کیے گئے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے یہ بات راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتائی۔ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ اسکیم کا آغاز حکومت کے ووکل فار لوکل ویژن کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ اس اسکیم سے مقامی مصنوعات کے لیے ایک مارکیٹ فراہم ہوتی ہے اور سماج کے پسماندہ طبقوں کے لیے اضافی آمدنی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ اسکیم کے تحت ریلوے اسٹیشنوں پر دیسی اور مقامی مصنوعات کی نمائش، فروخت اور انہیں زیادہ نمایاں طور پر پیش کرنے کے لیے دکانیں الاٹ کی جاتی ہیں۔
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जे.एंड.के पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहब में डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के शोहदा के बच्चों के लिए पायदार रोजगार पैदा करने के सिलसिले में बनाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंडस टावर्स लिमिटेड की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत की गई ये पहल जम्मू कश्मीर के उन बहादुर जवानों को खराज होगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत इन शोहदा के कुंबों के लिए ठोस इक़दामात करने की वादाबंद है ताकि वो आरामदेह और पुरवकार जिंदगी बसर करें। उन्होंने समाज, रोशन ख्याल शहरियों, कारोबारी तंजीमों और कॉरपोरेट से कहा कि वो समाज के तय उनके फराइज और जिम्मेदारी निभाएं। मौसूफ ने इंडस टावर्स लिमिटेड से कहा कि जिन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इंदराज हुआ है उनकी 100% प्लेसमेंट को यकीनी बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पुलिस के शोहदा के अफराद खाना को NRLM, उम्मीद, मिशन यूथ और सरकार के चालू दीगर प्रोग्रामों जैसी स्कीमों के जरिए रोजगार के मौके से जोड़ा जाए। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत सोमवार को 25 रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों में 197 मकामात पर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मुनक्किद कर रही है। वजारत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कई मकामी कारोबारी इदारों को मेले का हिस्सा बनने की दावत दी गई है ताकि मकामी नौजवानों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वसातत से अपने कैरियर बनाने के मौके फराहम हो सके। जिन उम्मीदवारों ने 5वीं से लेकर 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया हो और जिनके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो या ITI डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएट हों, वो इस अप्रेंटिसशिप मेले के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत का ताल्लुक पूरे मुल्क से है और ये मुल्क की ताकत के इजहार का एक मुनफरिद मौका है। उन्होंने टीम वर्क की अहमियत पर जोर दिया और G20 की मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का ताउन तलब किया। नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया कि G20 की सदारत से भारत के रिवायती बड़े मेट्रो शहरों के अलावा भी दीगर शहरों को नुमाया करने और मुल्क के हर इलाके की इंफरादियत को सामने लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात भारत की G20 सदारत से मुतल्लिक पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए गवर्नर्स, रियासत के वज़राए आला और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एक वीडियो मीटिंग की सदारत करते हुए कही। भारत की G20 सदारत के दौरान भारत आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद और मुख्तलिफ तकारीब पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए इस मौके को एक पुरकशिश तिजारत, सरमायाकारी और सियाती मकामात को नए सिरे से फरोग देने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस जरूरत को भी दोहराया कि लोग G20 तकरीबात में पूरी की पूरी हुकूमत और पूरे के पूरे समाज के नजरिए के साथ शिरकत को यकीनी बनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने G20 इंडिया के हवाले से सरगर्मियों की अमल आवरी के बारे में कल वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुनक़्क़द की गई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की। एक ट्वीट में LG ने कहा कि G20 इंडिया जम्मू कश्मीर के गूनागून सकाफती विरसे, शमूलियाती रिवायात और सियाती व तरक्याती मंजरनामे की भरपूर अक्कासी का एक मुनफरिद मौका है। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि हुकूमत ने निर्भया फंड की मदद से मुल्क में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की हैं। बच्चों को जिनसी जराइम से महफूज रखने से मुतल्लिक एक्ट पर नई दिल्ली में मुतलकीन की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुल फास्ट ट्रैक अदालतों में से 300 से ज्यादा अदालतों को बच्चों के काज और पोक्सो एक्ट के लिए मुख्तस किया गया है। एक्ट के तहत केसों को वक्त पर निपटाने के मामले पर बोलते हुए मौसूफा ने कहा कि पोक्सो केस को निपटाने के लिए मजमूई तौर 509 दिन लगते हैं,
इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पोक्सो एक्ट भारत में बच्चों के हुकूक की तवारीख में एक वाटरशेड लम्हा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ आज जम्मू में साबिक वजीर और पुंछ के एक वफद ने मुलाकात की। साबिक वजीर सुखनंदन चौधरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सरहदी इलाकों की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के समेत अवामी अहमियत के हामिल कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाली पंचायत के सरपंच रणधीर शर्मा की क़यादत में एक वफद और समाजी कारकुन शाजिया अमीन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें अपने अपने इलाकों के उमूर और मसाइल के बारे में जानकारी दी। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ईट राइट इंडिया मूवमेंट की अमल आवरी में पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K शकील उर रहमान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, आला तालीम और स्कूल एजुकेशन महकमों के सीनियर अफसरों के अलावा कई दीगर मुतल्लिक़ीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मौसूफ सेक्रेटरी ने सेहत के तई ईट राइट इंडिया मूवमेंट की इफादियत को उजागर करते हुए कहा कि समाज की बेहतरी के लिए ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि इस कदम को पूरे जज्बे के साथ अमलाया जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि जमीनी सतह पर इस तहरीक को कामयाबी के साथ अमलाया जा सके। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तिब्बी इदारों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों के लिए एक तरबियती सेशन बुलाएं ताकि इस तहरीक के दायरे में तमाम इदारों को लाया जाना यकीनी बन जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो अपने अपने महकमों के लिए नोडल अफसर नामजद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूकुल बशर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में रोज़े अव्वल से पेश रही है और यहाँ के अवाम के इज्तिमाई हुकूक को इस्तिहसाली अनासर के गैज़ व गज़ब से निजात देने की खातिर अजीम तर कुर्बानियाँ देती रही है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। आजकल के जदीद और तेज रफ्तार जमाने